अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिस्कवरिंग पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ फिनटेक से एक वी हैव गॉट अनदर ब्रांड, वी हैव गॉट अनदर कंपनी, अनदर ऐप दैट वी आर कवरिंग टुडे, एंड वी हैव गॉट चीफ ग्रोथ ऑफिसर ऑफ स्विच, मोहम्मद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच आशिर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, आपने जो है वो टाइम दिया और इतना ज़्यादा टाइम दिया। एंड बिफोर आई come into fintech world और switch को हम discuss करें, I would like to discuss about your early life and education and your experiences, as you have spent good amount of time in sales. So I would also like to get that professional aspect of the sales side. You did your graduation from London Metropolitan University. So how was it as a Pakistani student, and the overall environment and the education factor? Thank you very much once again. Okay, so it was an amazing experience. It was something that I really wanted to do. I did push myself, my family to let me go there and experience the vibe of the city and everything. And I believe it was totally a worth it experience. मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो इंटेंशनली मैंने कुछ चीज़ें की थी, तो थोड़े दिनों बाद मुझे रियलाइज़ हुई कि मैंने थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लिया था. सो आई started mingling with more of the local people, चाहे वो पाकिस्तानी हो या दूसरी नेशनलिटी के हो. when you are in that city, I thought ये वो वैल्यू एडिशन है जो मुझे अपने साथ लेके वापस जाना चाहिए, because I am the only son in the family. So मुझे वापस तो आना था, यहाँ आके कुछ करना था. So वो मैंने चीज़ बिल्ड की, क्रॉस कल्चरल हार्मनी बिल्ड करने का, उसको समझने का मौका मिला, क्योंकि people were coming. So in our class there were like 25 nationalities. So you were learning each and everything from all of them. So it was a very fulfilling experience. Really helped me in whatever I managed to achieve or get into in the early part of my career. Alhamdulillah, it is So still how different is the exposure in the education system in Pakistan versus education system in any other country, especially the western side? It was more on the practical side of things, of course. मैं क्योंकि ग्रेजुएशन कर रहा था उसमें, तो मुझे उस वक्त ऐसे लग रहा था कि हमें एक्सपोजर दिया जा रहा था, that they took us to, one of the teachers took us to London Stock Exchange as well. So it was an outstanding experience for someone who was 23 at that time. मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई थी कि यार ये कौन सी दुनिया है, यहाँ किस तरह के लोग हैं. And then when you were looking at them, they were very smart, very sharp, very nicely dressed people as well. So वो चीज़ें हमने बिल्ड की कि यार इस तरह के लोग होते हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं. So हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई उसके हिसाब से. Practical experiences. A lot of them. Okay. And then you came back. तो वो एक फैसला फैमिली की तरफ से था या you wanted to come back to Pakistan? Like I mentioned earlier, वापस आना था. I'm the only son in my family. So उस टाइम के लिए मैं गया था. But when I came back, I came back when in later of 2007. So वो बहुत अच्छा टाइम चल रहा था हर हिसाब से. Yes. Businesses were booming, telcos were coming, banks were booming as well. I got here. मैंने पहले ये सोचा था कि I'll take some time to relax, because I was away for family for a good couple of years. But all of a sudden वो एक हम किसी साहब से मिले, उन्होंने बताया कि यार ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है. I got into that. I was lucky कि टेलीनॉर जैसी ऑर्गेनाइजेशन से मुझे अपने करियर स्टार्ट करने का मौका मिला after graduation. And you have spent good 9 years there in Telenor. Yes. So how was that Telenor का experience? बहुत ही amazing. मतलब it is something that I still carry. I always believe that it was one of the companies that are really owned. उससे एसोसिएशन, उसकी एफिलिएशन, वो जो नंबर मेरे पास है वो अभी तक उसी नेटवर्क के ऊपर है. आई थिंक द वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि जितने भी प्रोफेशनल्स के साथ लास्ट कुछ हफ्तों में मैंने पॉडकास्ट किए, दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन राइट नाउ, बट दे ऑलवेज गिव द क्रेडिट, द ड्यू क्रेडिट टू देयर ऑर्गेनाइजेशंस वेयर दे हैव वर्कड, इवन इफ दे हैव देयर ओन स्टार्टअप्स, अपनी कंपनी बना ली है, लेकिन दे गिव देयर ड्यू क्रेडिट टू द कंपनीज. आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट of you as a character for the any employee, कि आप अपनी जो employer है उसको एक credit जो आपका बनता है वो आप उनको दें कि in all your career कि वो कितना ज़रूरी होता है. I think that's the one good thing in you also. देखिए मुझे मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, राइट. सो अगर आप
कोई चीज देख रहे हैं, हमें बहुत सारी, ये जरूरी नहीं है कि जो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही वो चीज गलत ही हो। यस, वो ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप गौर करेंगे, हो सकता है लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ या लेटर ऑन यूल रियलाइज, इफ नॉट एट दैट टाइम, कि यार ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी थी। तो जैसे मैं बताऊं, even before Telenor, even before graduation, I was part of Citibank. Okay, yes. So वहाँ पे मुझे एक और तरह की अट्रैक्शन नजर आती थी, वो वर्क कल्चर, वो डायनेमिज्म, वो चीजें क्रिएट करने का मौका। आप इतने स्मार्ट लोगों से मिलते थे कि आप थोड़ा थोड़ा भी, मुझे लगता था, उनसे पिक करते थे ना। सो वो उसने बड़ा हेल्प किया। बट देन टेलीनॉर आया, उसने एक कल्चर दिया, उसने एक वर्क एथिक दिया, उसने बताया कि यार अपनी वैल्यूज के साथ और उन वैल्यूज के साथ आपने कैसे जुड़ना है। हमें वो वैल्यूज का हर थोड़े अरसे के बाद एक रिफ्रेशर करवाया जाता था। सो वो इनकलकेट कर गई हमारे अंदर। एंड देन आई बिकेम पार्ट ऑफ सो मेनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैज हो गया, जैसे यूबीएल हो गया, पेमॉप हो गया, इन्फोबिप हो गया, यूशन हो गया। सो वो सारी चीजें मैंने ये कोशिश की कि एटीट्यूड से, मतलब आप काम तो बहुत से लोगों से करवा भी लेते हैं, जब आपके पास कहीं ना कहीं टाइटल आता है, डेजिग्नेशन आती है, मैंडेट आता है, बट इफ यू आर मोटिवेटिंग देम, इफ यू आर एक्चुअली इंस्पायरिंग देम, सो वो फिर एक लास्टिंग मेमोरी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब व्हेन यू हियर गुड थिंग्स फ्रॉम पीपल के आपके साथ वहाँ काम किया था या आपके साथ ऐसे मिले थे, तो वो चीजें हमने आपसे कुछ थोड़ा बहुत सीखा। आई एम श्योर मैं कोई इतना स्मार्ट तो हूँ नहीं कि मैं बहुत सारी चीजें लोगों को सिखा पाया हूँगा, पर जो थोड़ा थोड़ा मैंने सीखा, मैं बहुत उसमें से थोड़ा शायद इम्पार्ट कर पाया हूँगा। तो उसने, उसकी वजह से जो मैं कॉम्प्लीमेंट कुछ सुन पाता हूँ, वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि यार ठीक है, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो वो ये ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें पॉजिटिविटी लेना और उसको लेके आगे चलना इज अ लेगेसी दैट वी ऑल कैरी। अब मैं खैर, हम अपना जो स्टार्टअप कर रहे हैं, ये इसमें आई एम अ फाउंडिंग मेंबर इन दैट एज वेल। सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट कल्चर सो दैट व्हेन people who are associated with it go out somewhere, they go out with values, they express themselves with values, and then we attract positive things towards us. Then you did your MBA from KUBS. Okay. And it's comparatively a very not very old institute in terms के अभी recently उसका हम देख रहे हैं, कुछ सालों के अंदर evolve हुआ है। तो how is it coming from the background, क्या आपने वहाँ लंदन से पढ़ाई ली, you did your graduation from there and then the MBA in Pakistan. So how was that experience? अच्छा, ये बहुत recent हुआ, प्री कोविड शुरू हुआ ये, and then I experienced the online teaching during COVID as well. So KUBS came out actually from, it's Karachi University Business School, so it came out after the split of IBA. Yes. Initially IBA was done in Karachi University as well. So जब वो अलग हुआ तो बिजनेस स्कूल का थोड़ी राइज होना शुरू हुआ। It is still, I believe, not very well represented in terms of digital presence or organizing events. I really want to do that. I have had discussions with our dean on this as well, कि हमें कुछ करना चाहिए, because जो teachers हैं, they are highly qualified. जो लोग आ रहे हैं are coming from a very diverse background. मतलब मेरे साथ, हमारे साथ ऐसे कुछ लोग भी थे जो कि हमसे काफ़ी सीनियर थे, and they were departmental and divisional heads at that time as well. और कुछ नए भी थे जो हमसे जूनियर थे. There was a lot of mix. वाइब भी बहुत अच्छी थी, बट थोड़ा सा हम अगर उसको और करें, मुझे लगता है कि मजीद वैल्यू वो कंट्रीब्यूट कर सकता है वो इंस्टीट्यूट, क्योंकि उसने मुझे तो बहुत वैल्यू दी इन टर्म्स ऑफ, मतलब मैं क्योंकि 10-12 साल के बाद मैंने दोबारा स्टडी शुरू की, सो आई रियली एंजॉयड द कैफे लाइफ एज वेल. मुझे बहुत मजा आया कराची. सो और बट दूसरी साइड पे वो जो टीचर्स थे, दे वर PhDs मोस्ट ऑफ देम. ओके, सो उन्होंने जो नए कॉन्सेप्ट्स दोबारा से हमें दिए ना, 10-12 साल के बाद मुझे लगा कि यार रिफ्रेशर होना चाहिए. और अब मुझे लगता है कि आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट डेकेड आई विल हैव टू डू समथिंग एट लीस्ट. मतलब किसी भी चीज में करो, मुझे लगता है कि हर कुछ अरसे के बाद आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा. You learn from other people's experiences. Learning is one experience that you should get every other time. आपका होना चाहिए बिल्कुल. Okay, so you did your MBA in marketing, if I'm not wrong, right? And then you have pursued your whole of your career in sales. So if I ask you, what makes you good in sales? Like you have, we have been the chief of the sales also, you have the sales manager part also. So what's the one key element that should be there in a good salesman? There will be a couple, if you allow me to. Yeah, sure. So one thing is that I have learned over a period of time. Initially, I was very agitated as well in the beginning. When you are in early part of your career, you get
at times irritated with certain things. But then the seniors taught us, and then you learn and absorb. And the ones who absorb, I truly believe they are the ones who transform themselves as well. So एक जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा लगती है important, वो है listening. हम कभी कभी ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं, आपको नॉलेज होता है, मैं हाशिर की बात फॉर एग्जांपल समझ भी रहा हूँ, बट आई हैव टू लेट हाशिर कंप्लीट, बिकॉज आई डोंट नो कि वो हाशिर वो वाली बात को जो अभी जिक्र कर रहे हैं, क्या वो मुझे उसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ चाह रहे हैं, या वो कहीं मुझे उसको लेके जाना चाह रहे हैं. सो आई हैव टू गिव इट सम टाइम, गिव इट अ थॉट, एब्जॉर्ब करूं, बिकॉज ये वैसे भी कहा जाता है कि सेल्स 70% इज द लिसनिंग पार्ट, 30% इज द टॉकिंग पार्ट. सो यू विल हैव टू लिसन मोर, बिकॉज जहां वो लेके जा रहे हैं हो सकता है मैं वहां वैल्यू ऐड कर पाऊं. सो वो मुझे लगता है लिसनिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. वो इसलिए भी शायद सेल्स में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, इस वजह से भी सुनना पड़ता है थोड़ा बहुत उसको, अगर मैं दूसरा अपोजिट साइड पे सुनना लेके जाऊं. देखिए वो हो सकता है, और मैं उसको इस तरह से लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे सामने कोई बात कर रहा है ना, नॉट इन अ डिसरिस्पेक्टफुल वे, बट अगर कोई मुझे लेटर हाफ ऑफ द डे में भी याद कर रहा है ना, कॉल करके या ईमेल करके, या मुझसे कोई चीज़ पूछ रहा है, या उसको बहुत परेशानी है और वो मुझे कॉल कर रहा है, सो मैं उसको अब ऐसे काफ़ी अरसे से ऐसे लेता हूँ कि यार उसने मुझे याद किया है परेशानी में. तो इसका मतलब है जब मुझे परेशानी में याद रख रहा है तो अच्छे वक्तों में तो रखेगा. वो मेरी कनेक्टिविटी है ना. अगर उसको कोई इशू है मेरे सोल्यूशन से या किसी सोल्यूशन से, उसको भी पता है कि यार इसका फौरन मतलब कोई आंसर या सोल्यूशन नहीं होगा, बट मैं किसको बताऊं. अगर वो मुझे बता रहा है, मैं समझ रहा हूँ बात, और मैं उसको थोड़ा एम्पैथाइज भी कर रहा हूँ, उसको सॉल्व भी कर रहा हूँ, सो वो मेरी एक रिलेशनशिप बन गई. उसको पता है कि रजा इज देयर और दैट पर्सन इज देयर टू लिसन टू मी और bail me out of it. He will understand, he will tell me the time, and he will put all his effort to get this resolved. So मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. लोग ऑफेंड से होते हैं, यार किसी ने मुझसे थोड़ी रूडली बात की, या उसने मुझे क्यों 11th आवर के ऊपर कॉल कर ली. मैं तो फॉर एग्जाम्पल कोई डिविजनल हेड हूँ या डिपार्टमेंटल हेड हूँ, बट आई बिलीव अगर कोई आपको कॉल कर रहा है, वो आप उसको ऐसे रिस्पेक्ट में लेके, यार उसने आपको याद रखा हुआ है बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू डिड प्रीवियसली, और उसकी वो रिलेशनशिप है. और यही वो मतलब फॉर एग्जांपल मैं हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में रहा हूँ, वो लोग भी होंगे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे. तो अगर आपकी रिलेशनशिप है ना, सो दैट मेक्स योर लेटर ऑन सेल्स वेरी इजी, बिकॉज उसको पता है कि यार ये बंदा हमेशा कनेक्शन में रहता है, ये मेरे पास अगर आ रहा है तो मुझे कोई गलत चीज या गलत सोल्यूशन, गलत गाइडेंस नहीं देगा. एंड यू हैव ऑल्सो, आई बिलीव यू हैव गॉट टू बी ओपन एंड बी truthful about the solution as well. Okay. क्योंकि अगर हाशिर की कोई रिक्वायरमेंट है या हाशिर ने कोई मुझसे आस्किंग की है, तो हाशिर को ये आइडिया कि कोई भी सोल्यूशन 100% सही नहीं होगा. 100%. तो मैं ये वैसे भी कहता हूँ, मैं जिक्र यहाँ भी करना चाहूँगा कि ये इंसानों के बनाया हुआ सिस्टम है, प्रोसेस है. तो इसमें कहीं ना कहीं शॉर्टकमिंग्स होंगी. एग्जैक्टली. हाउ क्विकली वी रिस्पॉन्ड, यस, दैट्स द विन फॉर मी और द ऑर्गेनाइजेशन. बट आप अगर मुझसे कोई चीज़ बता रहे हैं, मैं उसको एब्जॉर्ब करूं, समझूं, उसका रिस्पॉन्स आपको दूं और गाइड करूं आपको सच्चे में कि यार अभी हमारे सोल्यूशन में या हमारी प्रोडक्ट में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ आपको दी जा सकती है, लेटर ऑन विल वर्क और मे बी विल गाइड यू एल्सवेयर. सो बी ट्रूथफुल इन द रिलेशनशिप, लिसन टू पीपल एंड देन बिल्ड रिलेशनशिप्स. मुझे सबसे ज़्यादा इन चीज़ों ने फ़ायदा दिया है, तो प्रैक्टिकली मैं बोल सकता हूँ कि यार ये चीज़ें डू वर्क. माइट there will be some other things that work for other people, but these are the things that has worked for me. So if I ask you, how do you evaluate a good salesperson? Like अगर आपको domain है कि hire a good salesperson, how will you evaluate? ये क्या क्या उसके अंदर ये सारी skill set तो होने चाहिए, but what's your evaluation process? मैं सबसे पहले listening वाला ही एस्पेक्ट करूँ. मेरा एक प्रोसेस अब बन गया है कुछ अरसे से. वो ये है कि जब भी कोई इंटरव्यू होता है, सो आई डोंट जस्ट सिंपली कंडक्ट एन इंटरव्यू. रेफरेंसेस यकीनन डू मैटर, बिकॉज उससे मुझे लगता है ये आपको पता चलता है कि यार ये जेन्युइन बंदा है जो आ रहा है. रैंडमली इफ समवन इज कमिंग, आई डोंट नो. अगर किसी की कोई प्रेजेंस भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, सो आई डोंट नो कि उसकी क्या बैकग्राउंड होगा. यू विल हैव टू हैव अ बैकग्राउंड चेक, यार ये रिलेवेंट आपके काम से या कल्चर से होगा भी. दूसरा ये कि मैं उस कोशिश करता हूँ कि वो प्रेजेंट करे. उसका एक फ़ायदा ये कि इन B2B environment especially, you are meeting corporate clients, so you present, you should be able to present, talk, whichever language.
और उसका दूसरा फ़ायदा ये कि मैं उसमें फिर करता हूँ क्रॉस क्वेश्चनिंग। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कन्वर्सेशन बेसिकली। ओके। दूसरा ये कि अगर मैं किसी पॉइंट पे आपको रोक रहा हूँ, सो ऐसा तो नहीं है कि आप अपने ही फ्लो में चले जा रहे हैं। मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ यार आप मुझे इस बारे में बताएं, so आप उसको, क्योंकि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, सो आप उसको उधर ही ले जाएं। इसका मतलब है उसका पेन पॉइंट वो है। आप अपने फ्लो से जाएंगे, फिर उसकी बात जाएगी, तो फिर वो एक प्रोसेस कम्युनिकेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो ठीक ये है। चीज़ है मैं कुछ देखता हूँ। अच्छा, आई हैव सीन दिस on your profile. You have also worked with the WhatsApp business integration in the business. How do you see that? We have rarely see कि हम अभी recent trend ही देख रहे हैं, Pakistani companies are getting into integration of the WhatsApp business in their business. So how do you see that technology evolving and helping the companies to grow the sales? Achha, it's a passion project for me. So WhatsApp is something when I became associated with Infobip, so उस वक्त WhatsApp आ रहा था actually. It was something WhatsApp business profile, Facebook business manager verification was something which was alien to businesses. हम जिस भी बिजनेस से बात करते थे, I've shared it so many times कि 99% of them were not even verified on Facebook. Yes. So वो एजुकेशन वाला पार्ट था. सो उससे और पैशन आया कि भाई इसमें पोटेंशियल है. एंड बिकॉज एवरीवन वाज स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ आवर टाइम ऑन व्हाट्सएप, सो मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि एक नई ऐप हो, सिर्फ वो डाउनलोड हो और मेरी ऐप चले. इट इज़ अ चैलेंज. मुझे जैसे वो सुपर ऐप वाला सीन है, अभी बहुत से लोग सुपर ऐप को क्रिएट कर भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, और आई एम श्योर दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड आई विश देम वेल, बिकॉज ये बहुत मुश्किल काम है. बिल्कुल. So I'm sure वो होगा, कंसोलिडेशन की ज़रूरत होती है. बट व्हाट्सएप इज समथिंग विच इज़ कमिंग प्री इंस्टॉल्ड. एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये था. एंड यू एंड मी वर सो एंड स्टिल आर सो फेमिलियर विद द एक्सपीरियंस. इफ समथिंग न्यू कम्स अप, फौरन हम उसको पिकअप कर लेते हैं. सो अगर मेरी वहाँ प्रेजेंस नहीं है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैंपेन्स करनी पड़ेगी, कस्टमर को मेरी ऐप या मेरी वेब या मेरे प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा. एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसके ऊपर बेस ऑलरेडी है. सो रादर देन डूइंग वॉल्यूम ऑलरेडी मौजूद है. मैं कुछ ऐसा यूज केस बिल्ड करूं जिस ऐप पे लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उस पर मेरा चैनल भी ऐड कर लें और मुझे भी थोड़ा टाइम देना शुरू कर दें. सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट. स्टिल देयर इज पोटेंशियल, क्योंकि सोशल कॉमर्स में है. हम बहुत सारे यूज केसेस, हमारी जो पेरेंट कंपनी है इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशंस, वी आर बिल्डिंग सॉल्यूशंस ऑन व्हाट्सएप एज वेल. ओके ओके. सो हम चाहते हैं कि एंड टू एंड हो, ऑटोमेशन हो. उससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, बिकॉज अभी नॉट इवन जेन ज़ी, मतलब मैं अगर अपनी भी बात करूँ, सो मैं अपनी बैंकिंग, अपनी दूसरी चीज़ें, ब्राउजिंग या कोई ऑर्डरिंग जो करना होता है, वो मैं उस वक्त करता हूँ जब बिल्कुल मेरे पास फ्री टाइम होता है. मे बी लेटर इन द इवनिंग, वेरी लेट इन द इवनिंग. सो मैं ये, और मैं कॉल करना भी पसंद नहीं करता अब ज़्यादा. मैं व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेशन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए. अब मुझे ऐसा लगता है एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ों में. सो मैं वो करके अपनी चीज़ ले लेता हूँ, एंड देन आई मूव ऑन. स्मार्ट. दैट्स वेयर व्हाट्सएप प्लेज अ सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट. ओके. अच्छा, वी आर नाउ गेटिंग इनटू फिनटेक. ओके, यू स्टार्टेड इनटू दिस फिनटेक वर्ल्ड विद पेमॉब, and why fintech? That was कुछ अचानक से आ गई opportunity, या you wanted to come into it and then you pursue your career in PayMob? अच्छा, ये कुछ अर्से पहले, पेमॉब से पहले मुझे थोड़ा सा ये रियलाइज होना शुरू हुआ, when you meet good people, that's what pick up from them. ये कुछ अर्से के बाद ऐसा होगा कि सेल्स विल नॉट बी नॉर्मल सेल्स दैट वी वर डूइंग, कि आप डोर टू डोर जाएंगे या आप किसी रेफरेंस से मिलेंगे और उसको चीज़ बताएंगे और दे देंगे. थिंग्स वर मूविंग टूवर्ड्स डिजिटल. तो मुझे लगा दो ही चीज़ें हैं डिजिटल में, एक तो पेमेंट है और एक कम्युनिकेशन है. सो एंड दे वर्क हैंड इन हैंड. अगर पेमेंट हो रही है और उसकी कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ SMS ट्रांजैक्शन नहीं आता, तो हमें बड़ी परेशानी होती है ना कि पैसे डेटा हुए नहीं हुए, OTP नहीं आ रहा तो ट्रांजैक्शन नहीं हो रही. सो दे गो हैंड इन हैंड. मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी डिजिटल कम्युनिकेशन की विद इन्फोपिप एंड देन ई-ओशन. सो वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ, बहुत मज़ा आ रहा था, उसमें सब कुछ हो रहा था. बट देन बिकॉज मैंने UBL में भी काम किया था, एंड UBL was one of the first banks जो कि डिजिटल की तरफ जा रहे थे. बहुत फैंसी ऐप अभी भी है, मुझे बहुत पसंद है स्टिल वो. तो वो मिक्स मुझे लगा था. मैंने डिजिटल पेमेंट्स में आने से पहले मैं कम्युनिकेशन की तरफ चला गया. तो जब ये अपॉर्चुनिटी व्हेन पेमॉब रीच आउट टू मी कि ऐसी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, सो दैट वाज समथिंग दैट आई कुडंट से नो टू.
they were setting up the business, तो मुझे ये भी advantage था कि how do the rails happen, how does the whole process happen, setting up the business, उसको zero से शुरू करना, जब आप एक बहुत ही सादे से ऑफिस में हम बैठते थे to a very fancy office that we had after 6 months, it's very nice office Paymount का, किस तरह से वो जर्नी हुई, देन हायरिंग एंड देन स्केलिंग, एक ब्रांड जिसको लोग नहीं जानते थे उसको फिर आपने हेल्प किया विद ऑल ऑफ अस टुगेदर टू मेक इट अ वेरी अल्हम्दुलिल्लाह अ गुड नेम इन द मार्केट एंड वी हैड वेरी नाइस सॉल्यूशन. सो वो मुझे लगा कि पेमेंट्स was something I was not doing, or maybe I got cut off initially, but then alhamdulillah with this opportunity I got back here. Okay. And then so how did this switch came into your life? Switch I hope I'm pronouncing it right. It's yes, switch. Okay. It's switch, yes. So it happened because of a mutual discussion. I am always of a believer that we as an industry need to sit together, be it communication, be it payments and all. So if we are meeting, we are actually exchanging ideas and then coming up with solution which is feasible for the market. Because मैं सारे काम खुद नहीं कर सकता, आप भी सारे काम खुद नहीं कर सकते. There's a partnership, collaboration that happens. So same goes for Switch. When this idea came up, हम सोच रहे थे कि किस तरह से होगा. Retail side was happening, but the online side was something that the founders were trying to build. फिर मेरा रोल उसमें हुआ कि यार आप थोड़ा सा इस साइड को हमें लीड करें, इंटरनेशनली भी हमें एक्सपेंड करना है, सो इंटरनेशनल एक्सपेंशन को लीड करें, प्रोडक्ट करें, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, ऑनलाइन पार्टनरशिप्स. इट हैज गॉट सो मच पोटेंशियल. सो विद द टाइटल it's a mix of everything. Sales is one smaller component definitely, but then product innovation, collaborations, partnerships, new market expansions. As we are in UAE, we want to expand more into the GCC side of things. Okay, so if I talk about there are many fintech apps coming into Pakistan. Some are working on investment, some are working on savings, some mutual funds, XYZ. There are many. What's the main niche of Switch? Like what you are consistently working on or trying to focus on? As a one-liner, Switch is a merchant-focused fintech. Okay. And there are two things. So we are helping businesses collect funds and disburse them as well. अब ये collection and disbursement दोनों जगह हो रही है. अगर हम बात करें कि retail channel की, उसके ऊपर हमारी एक Switch की ऐप है. वो merchant या retailer डाउनलोड करता है, पेमेंट्स एक्सेप्ट भी कर सकता है वो, और उसी के थ्रू वो एयर टाइम की सेल, बिल पेमेंट की सेल, सो ऑन एंड सो फोर्थ करता है. बिकॉज अगर हम रिटेलर को वैल्यू ही नहीं दे रहे ना, नॉर्मली क्या होता है कि हम एक्सेप्टेंस पे तो काम कर लेते हैं, उसके पास फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज आ गए. अब उस रिटेलर ने अगर फर्दर ट्रांजेक्शंस करनी है तो वो जाएगा ATM, कैश विड्रॉ करेगा, एंड दैट्स वेयर द पर्पस इज लॉस्ट. फिर वो कैश ट्रांजेक्शन करता है. What we have done is we have created utility around it. अगर आपने पेमेंट एक्सेप्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ कोई बिल पेमेंट आपके पास आ गई, कुछ आ गई, ऑनलाइन पेमेंट आपके पास आ गई, तो अब आप उसको यूज़ करें ना, रीयूज़ करें, क्योंकि उसने तो उसी पैसे के ऊपर पैसा बनाना है. सो वो एयर टाइम सेल करता है, उस पर कमीशन मिलता है, वो बिल पेमेंट करता है, वहाँ कमीशन मिलता है. एंड नाउ वी आर एडिंग मोर यूज केसेस टू इट. हमारा एम्बिशन है कि उसको इतना रिच कर दें कि वो डिजिटल करेंसी में ही डील करना शुरू करें. एंड विद दिस वैल्यू मर्चेंट्स खुद वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू दूसरे मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं कि यार इनके साथ काम करें, ये आपको वैल्यू क्रिएशन करके दे रहे हैं. सो ये तो रिटेल वाली साइड पे हम कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह और भी आप यूज केसेस देखेंगे वेरी सून दैट वी विल बी लॉन्चिंग. तो रिटेलर टू रिटेलर हो रहा है या कस्टमर कैन आल्सो पे टू द रिटेलर यूजिंग द QR कोड? इवेंचुअल कस्टमर कैन. सो इट्स B2B2C. तो रिटेलर इज समवन जो कि जिसके पास अभी भी आ रहा है कस्टमर, तो अभी भी अपनी ऐप से कर पा रहा है ना. बट ऐसे एरियाज जहाँ पे कैश की हैंडलिंग ज़्यादा थी, लोगों के बाहर से पैसे आते हैं या उनको पता नहीं है कि एयर टाइम की सब्सक्रिप्शन कैसी करनी है, वो रिटेलर के पास जाते हैं ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, और फिर वो रिटेलर उनको सारे काम करवा के दे देता है. तो ये तो रिटेल साइड पे हो गया. एंड देन वी आर ऑल्सो इंशाल्लाह वेरी सून, बाय द टाइम दिस गोज लाइव, इंशाल्लाह विल बी लाइव विद आवर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे एज वेल. तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, सोशल कॉमर्स बिजनेसेस हो गए, सो वो हमारा पेमेंट गेटवे यूज़ कर पाएंगे. एंड इट्स अ वेरी इट्स सॉर्ट ऑफ एन ओमनी चैनल कलेक्शन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको ट्रेडिशनली कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स की एक्सेप्टेंस मिलेगी, आपको वॉलेट्स की एक्सेप्टेंस मिलेगी, आपको अकाउंट्स की एक्सेप्टेंस मिलेगी,
आपको वन बिल के थ्रू भी एक्सेप्टेंस मिलेगी. then we will be adding buy now pay laters and easy payment plans, all of them things. So ये हम देना चाहते हैं कि एक बिजनेस ई-कॉमर्स का बिजनेस है, बड़ा चाहे छोटा, वो 4 अलग लोगों के पास ना जाए. वॉलेट्स के लिए किसी के पास जाए, अकाउंट्स के लिए किसी के पास, कार्ड्स के लिए किसी के पास, वो हमसे प्लग इन ले. हमारा शॉपिफाई का वो कॉमर्स का प्लग इन ले, अपनी शॉपिफाई की वो कॉमर्स की वेबसाइट पे प्लग इन करे, या हमसे API ले ले, इंटीग्रेट करे, एंड देन स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट्स एंड growing their business. So what's the current stage of Switch? Like, is it on the pilot side, or you have launched it, or what's the current stage? So retail is already in the market. It's been 7.5 months. Alhamdulillah. And how is it going? Like the number, if you would like to share. So we have got 2,600 plus retailers right now live with us who are transacting. We have processed more than 20 million plus in TPV. Okay, अच्छा. So it's a very, alhamdulillah, bootstrapped company, cash flow positive company. And is there any parent company behind it, like Intel Excel Solutions? Okay. So they are the working behind all this team. Okay. Yes. One thing, there are so many fintechs coming into Pakistan. I cannot even remember the name. अभी 5 को तो license मिला है. Then again there are many already working. कितनी apps मैं संभालूंगा as a customer? How many apps should I have on the mobile? And every other app has some unique feature that the other don't have. तो उसको मैं किस तरीके से, do you think there should be one platform, a cross platform for all of that, कि वो handle करना management payment को, या Switch is thinking about it, or what do you say about it? अरे जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा तो यूज केस है ही यूटिलिटी के ऊपर बेस किया हुआ. आई अंडरस्टैंड बहुत सारी एप्स हैं एंड कंसोलिडेशन की ज़रूरत होती है, बट जो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है उसी को एडवांटेज है. इफ़ यू वुड लाइक टू डिफाइन इट इन अ वेरी कॉमन वर्ड्स, ना लेमन के वर्ड्स के अंदर, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा आसान से समझ आए. ये हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ऐप मैंने डाउनलोड कर ली, वो मेरे सारे काम करे. वो मेरे ऐसा नहीं हो कि मुझे पैसे अगर किसी से लेने हैं तो मुझे दूसरा फ़ोन उठाना पड़े और उसके थ्रू करूँ, और जब मुझे किसी को एयर टाइम देना हो, या हम मोबाइल पे टॉपअप करते हैं बिल पेमेंट वगैरह के लिए, तो मैं तीसरा फ़ोन उठाता हूँ. हमारी ऐप एक स्मार्ट ऐप है, स्मार्टफोन पे चलती है. जो भी ऐप यूटिलिटी बिल्ड करेगी, यूटिलिटी से मेरी मुराद ये है कि आप पैसे रिसीव तो कर रहे हैं लोगों से, इंटरनेशनल रेमिटेंस भी आ रही है लोगों के पास, बैंक अकाउंट में सब कुछ आ रही है, रिटेलर्स के पास भी आ रही है. बट रिटेलर्स के पास हमने नॉर्मली देखा है कि उनके पास 4-6 फ़ोन्स होते हैं. एक फ़ोन से वो यूफोन का कर रहा होता है लोड, एक फ़ोन से वो PTCL का कर रहा होता है, एक फ़ोन से टेलीनॉर का कर रहा होता है. So, हमने क्या किया, हमने सबको कंसोलिडेट कर दिया. ओके. पहले जो हमारे पास लोड वाले के पास 3-4 फ़ोन होते थे, उसको वो अब आपने एक एप्लीकेशन के ऊपर लेकर आ गए हैं. तो दैट मीन्स कि वो सारे जो टेलकोस थे वो भी आपके साथ कनेक्टेड है, और उनका, लेकिन फिर उनका ये है कि जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि उनका भी एक कॉर्पोरेट अकाउंट हुआ करता था आई थिंक लोड भेजने के लिए, तो वो अब आपने अपने साथ जो है वो उसको इंटीग्रेट किया हुआ है. अच्छा, हमने यही काम किया. हमने यकीनन तमाम टेलकोस को एक जगह एग्रीगेट किया, क्योंकि ये काम हम पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन SMS के लिए भी कर रहे हैं. वी थॉट दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, पोटेंशियल है इसका, और इसी बेसिस के ऊपर उसको 4 फोन से वो एक सिंगल डिवाइस के ऊपर आ गया. सबके पास स्मार्टफोन्स हैं इस वक्त, पेनिट्रेशन हमारी बहुत अच्छी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सबके पास है. एग्जैक्टली. सो वो उस ऐप से एक काम तो ये कर रहा है कि वो लोड वगैरह कर रहा है, इजी लोड हो गया, ये सारी चीज़ें कर रहा है. दूसरा बिल पेमेंट, क्योंकि ऐसे एरियाज जहाँ पे बैंक की ब्रांचेस दूर हैं, Tier 2 Tier 3 सिटीज स्पेशली, वहाँ पे इसकी यूटिलिटी और ज़्यादा हो जाती है कि आपको बैंक ब्रांच तो है नहीं, आपने बिल पेमेंट करना है तो कैसे करें, ये आप काम कर सकते हैं. इवन इन आर सिटी अगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फिजिकल इंटरेक्शन चाहिए होती है बिल पेमेंट, बिल के ऊपर ठप्पा चाहिए, यस वो चाहिए, बिल्कुल मार्केट है ये. सो यू कैन नॉट इग्नोर दैट, राइट. आपने रिटेलर को इनेबल किया हुआ है, रिटेलर के पास जाते हैं, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रोसरी या मॉम एंड पॉप शॉप मोहल्ले की होती है उस पर जाते हैं, बातचीत करते हैं, उसी के थ्रू बिल पेमेंट कर देते हैं, और मतलब उनकी कन्वर्सेशन भी हो जाती है, न्यूज़ भी मिल जाती है उनको, और उनकी बिल पेमेंट भी हो जाती है. सो दैट्स एन एक्टिविटी दैट इन आवर सोसाइटी हैपेंस, राइट. सो हमने इन सारी चीज़ों को कवर किया है. सो हम ये कह रहे हैं कि आप पेमेंट एक्सेप्ट भी करें, उसके थ्रू ट्रांजैक्ट भी करें, पैसा जो आ रहा है उसी को री इन्वेस्ट करते जाएं करते रहें. और अब हम इसको
इंशाल्लाह मजीद बीफ अप करेंगे कि हम उसमें मजीद यूज केसेस ऐड करें. So how can the retailer top up their account? Is there any way to deposit the money into their account जो कैश उनको वो मिल तो रहा है? ऑनलाइन कर सकते हैं. अच्छा, एक तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं, दूसरा हमसे जो हमारी फैसिलिटी है उसको यूज करते हुए भी, बिकॉज हमारे एरिया सेल्स मैनेजर्स होते हैं, रिटेल मैनेजर्स होते हैं. नहीं, do you guys have the license to carry these sort of operations के जो account के operations होते हैं? अच्छा, हमारी बैंकिंग पार्टनरशिप्स हैं. बैंकिंग पार्टनरशिप्स हैं. ओके. बैंक्स की जो ब्रांचलेस बैंकिंग वाले आर्म है उससे हमारी रिलेशनशिप्स हैं. ओके, लिंक. अच्छा, दैट्स फॉर द रिटेल साइड. ओके, व्हाट फॉर द कस्टमर साइड? यानी कि वो कस्टमर जो वहाँ पे आ रहा है इजी लोड करवाने के लिए, हाउ कैन दे पे टू देयर जो आपका कस्टमर, जो आपका वो है रिटेलर जो है दुकान वाला, उसको किस तरीके से पे कर सकते हैं वो यूजिंग स्विच? अच्छा, हमारी तो मर्चेंट फोकस ऐप है, ठीक है. ओके, ओके. कर रही है. अगर उसको वो कैश भी दे सकता है, अगर उसको कोई ऑनलाइन मोड करना चाहता है उसके थ्रू पेमेंट उसके थ्रू भी कर सकता है. हम सॉफ्ट पॉस की तरफ भी जा रहे हैं. हम ये करना चाहते हैं कि वही जो हैंडसेट है रिटेलर का, उसके ऊपर टैप एंड पे के थ्रू कार्ड भी एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि इस वक्त 90-95% जो कार्ड्स हैं पाकिस्तान में वो NFC इनेबल्ड है. NFC इनेबल्ड है, बिल्कुल. टैप एंड पे के थ्रू पेमेंट करे और उसी के थ्रू अपनी फर्दर ट्रांजैक्शंस कर ले. सो बिहेवियर ड्राइव होगा, इससे डिजिटाइजेशन मजीद होगी. उन लोगों को भी नजर आएगा कि यार पहले, क्योंकि आपको शुरू में हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है लोगों की, आप पेमेंट उनसे टैप एंड पे के थ्रू करवा देंगे. गोइंग फॉरवर्ड वो हो सकता है अपने चैनल से कर लें, हमारी ऐप से कर लें, हर तरह से. बट डिजिटाइजेशन हमारी एम्बिशन भी सबकी यही है कि डोंट यू थिंक दैट्स अ वेरी एम्बिशियस सॉर्ट ऑफ अप्रोच टू हैव ऑल दीज थिंग्स ऑल टुगेदर? काफी मुश्किल नहीं है in a Pakistani market, where adoption? Subject matter experts. So our team is very strong on the retail side. So that's where we are seeing the traction, and these 2,600 plus retailers that we have are done in 7 months only, without much of a marketing support, more on the on ground and word of mouth marketing support. Online के ऊपर yes, हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कोई बिजनेस हो जिसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है बट ऑनलाइन प्रेजेंस है, या दोनों प्रेजेंस हैं तो वो एक सोल्यूशन कहीं और से ले. इट किल्स द पर्पस. सो हम चाहते हैं वन विंडो ऑपरेशन हो, सही बिजनेस अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट करे, पेमेंट्स वाली साइड की टेक केयर देख लेते हैं. ओके ओके ओके. अच्छा, हम अपने नेबर कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वी हैव सीन कि वहाँ पे ठेले वाले के पास भी जो है वो एक QR कोड पड़ा हुआ है, वो स्कैन करे पेमेंट्स हो जाती हैं. डू यू सी पाकिस्तान इन लेट्स से नेक्स्ट 5 or 10 years इवन टू गेट दैट मार्क कि मुझे मोची को भी पैसे देने हैं तो आई हैव टू पे थ्रू द QR कोड, आई हैव टू पे सब्जी वाले को भी दे सकता हूँ? डू यू सी पाकिस्तान इन नेक्स्ट 5 or 10 years के इस तरीके का लैंडमार्क हम अचीव कर लें? देखिए, इंडिया ने भी जो एक चीज अच्छी की कुछ अर्से हमारे से पहले, वो UPI की उन्होंने जो इंट्रोडक्शन किया, और हमने रास्त P2P के लिए तो इंट्रोड्यूस किया हुआ है. इट्स गोइंग वेरी सक्सेसफुली. मैं खुद बताऊं, मैं बहुत सारे लोगों को ट्रांसफर करता हूं, अगर वो रास्ते पे नहीं भी होते, आई इंश्योर दैट दे गेट ऑन विद इट. सो वो देयर इज usability of it, benefit of it as well. And now State Bank has asked banks to create P2M rails as well. Okay. So merchant payments भी इसके ऊपर आनी ही है. तो वो QR की फॉर्म में भी आएंगे डेफिनेटली. मगर ये फिर मैं वो इसके ऊपर फोकस करूँगा जो हमारा स्विच का फोकल पॉइंट भी है. We fundamentally believe that this digitization will be driven by the merchants. तो अगर हम मर्चेंट्स को इनेबल कर रहे हैं ना, अगर उसकी ज़िंदगी आसान हो रही है पेमेंट एक्सेप्टेंस से और देन डिसबर्समेंट से, आई थिंक जो एडॉप्शन की जो कमी है वो मेरे ख्याल में मर्चेंट साइड पे ही ज़्यादा है. कस्टमर समहाउ लाइक मेरे जैसा कस्टमर है, वो अगर 100 में जाता है तो 100 में से 10 दुकानें होती हैं जो एक्सेप्ट कर रहा होता है. तो एज फॉर द कस्टमर साइड आई एम यूजिंग 100 ऑफ मर्चेंट्स, बट अगेन वो 100 ऑफ मर्चेंट में 90 एक्सेप्ट कर रहे हैं, 10 एक्सेप्ट नहीं कर रहे. तो ओके दैट. एंड आई हैव ऑल्सो सीन रिसेंट कुछ दिनों में यू हैव ऑल्सो कोलैबोरेट विथ फ्यू ऑफ ऑल्सो सम अदर फिनटेक एप्स. सो व्हाट्स द एजेंडा और द व्यू बिहाइंड दैट? देखिए, हम ये समझ, फिर जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हर कोई हर काम नहीं कर सकता. सो यू विल हैव टू पिक एंड चूज, राइट? अब हमारे मार्केट में पोटेंशियल है कोलैबोरेशन का, क्योंकि अभी तो हमने कुछ डिजिटाइजेशन नहीं देखी, चाहे पेमेंट्स की हम बात करें, बहुत थोड़ी हुई है. तो अगर हम आपस में कोई फाइट करें या रिफ्ट क्रिएट करें, या मैं हर चीज़ दोबारा से क्रिएट करना चाहूँ, मुझे कितना रनवे चाहिए होगा 3 साल सारी रेल्स बिल्ड करने के लिए. सो इफ समबडी हैज डन इट,
yes, we can to utilize collaborate, it, हाँ. work on the use cases, because 95-98% मार्केट अभी भी है अवेलेबल. सो आप उसके यूज केसेस बिल्ड करें, अच्छा इंटरफेस बिल्ड करें, ईज बिल्ड करें ऑन टॉप ऑफ व्हाट वी हैव, एंड दैट्स वेयर द वैल्यू इज. So how is the response from the other fintech apps? Everybody is मतलब looking to क्यों collaborate. मार्केट में ये हमारे अच्छा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे कल्चर है ना कि हम जो है वो दूसरों की टांग खींचने में सबसे पहले होते हैं, एंड वी आर नॉट इनटू के हम जो है वो साथ मिलके कोलैबोरेटिव किस्म का वर्क करें. इफ़ आई रिमेंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इंडिया में भी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, दे हैव कोलैबोरेटिवली वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट दैट टास्क जो उनका अचीव हुआ है गोल के. जगह जगह चप्पे चप्पे पे QR कोड है, एंड दे कैन स्कैन इवन 5 to 10 रुपीज़. हमारे एक बड़ा एक नेगेटिव है यार, 10 रुपये की 10 रुपये तुम जो है वो मोबाइल पे ट्रांसफर करोगे, ऐसे ही भेज दो, 10 रुपये कैश दे दो. तो हाउ डू सी द रिस्पॉन्स ओवरऑल फ्रॉम द मार्केट, लाइक कंज्यूमर साइड से भी और द फिनटेक साइड से भी? अच्छा, फिनटेक साइड से मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. वी नो पीपल इन द मार्केट, सो हम बात करते हैं उसके ऊपर, हम यूज केसेस पे बात करते हैं. वी अंडरस्टैंड कि किसी ने अगर कोई काम अच्छा किया हुआ है उसको अप्रिशिएट करें, और कोलैबोरेशन और नेटवर्क बिछाएं और उसके ऊपर यूज केसेस बिल्ड करें. सो इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली फिनटेक्स, हम जब बैंक से भी बात करते हैं, सो बैंक्स आर वेरी ओपन एज वेल इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज, कि यार आप हमें इन पर्पस के लिए यूज कर ले, बिल्ड योर यूज केसेस अराउंड इट. सो इट्स अ गुड handshake which has happened between fintechs, banks and all the other players that are operating the market. So उस साइड के ऊपर तो पॉजिटिविटी है, कोलैबोरेशन है. They also understand it, हाँ. Yes, वैल्यू इसी में है. कोलैबोरेट करके काम करेंगे, अच्छे यूज केसेस बिल्ड करेंगे, बिकॉज हमारा सबका एम ये है कि डिजिटल ज्यादा हो. जितना ज्यादा होगा, सो हमारा पाई, अगर अभी इतना से हमारी वैल्यू है, तो वो उस पाई पे से हमारी वैल्यू भी बढ़ जाएगी. जब पाई ग्रो करेगा तो वी ऑल ग्रो टुगेदर, राइट? तो हमारा ये. और ऑन द कंज्यूमर साइड हमें उसको भी थोड़ा एजुकेट, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ये लगता है, और हमें ये करना चाहिए, और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमें कस्टमर को अवेयरनेस देनी है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की बात करूं, सो उसमें हमें कस्टमर को ये बताना है कि यार अगर आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जा रहे हैं, सो आप अगर वहाँ पे सिर्फ आपको कैश ऑन डिलीवरी नज़र आ रहा है ना, विच मीन्स इसकी KYC किसी थर्ड पार्टी ने नहीं की. यस, बिल्कुल, हाँ, ऐसा ही. अगर कोई गेटवे लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल कार्ड्स ही लगे हुए हैं, या वॉलेट लगे हैं, या बैंक लगा है, इसके बीच में एक थर्ड पार्टी, कोई फिनटेक, कोई बैंक उसकी KYC कर चुका है, उसके एड्रेस की वेरिफिकेशन हुई, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, इट गिव्स यू कंफर्ट. थर्ड थिंग, So it's a mandate that if you have an e-commerce website having digital payment, तो आपको वहाँ refund policy publish करनी पड़ती है. Okay. If it is not there, then हम जैसे जितने भी players हैं ना, we don't provide the service. So it is something good which is which should be communicated and is attractive for the eventual customer. कि मुझे पता है refund policy भी है, इसकी verification third party ने की हुई है, means there is a genuine business, there is a genuine founder. Because अभी भी कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि यार ऑनलाइन पे हम ऑर्डर करेंगे, पता नहीं आएगा नहीं आएगा. ये भी है, बिल्कुल. जो ब्रांड है जिसके पास ये सारी चीजें हैं, सो द कस्टमर शुड अंडरस्टैंड एंड द मर्चेंट एज वेल कि ये ऑथेंटिसिटी क्रिएट करता है. और हम मतलब बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें, हमारे यहाँ वैसे भी MDR बहुत ही कंपेटिटिव रेट पे मिलता है. सो रादर देन फाइटिंग ऑन दैट, आई बिलीव वी शुड वर्क ऑन द वैल्यू क्रिएशन दैट वी कैन डू. On one hand, guide the customer. On the other hand, merchant के साथ मिलके अच्छे innovative use cases पे काम करें. Because merchant की problem अगर मैं solve नहीं कर रहा ऐसा gateway, मैं अपनी पसंद की चीज़ बना के आपको नहीं दे सकता. बिल्कुल. तो अच्छा, तो how easy it would be for a merchant to sign up for the gateway sign? अगर मैं बात करूँ, women entrepreneurs हैं, they are working from home, they have already got a lot of things to take care of. उसकी बात करूँ तो दे विल हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग टू गेट द पेमेंट गेटवे फॉर देयर वेबसाइट्स, या फिर वो उसका भी कोई आसान सा एक प्रोसेस आप लोग लेके आ रहे हैं? अच्छा, हम डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस. यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्पेशली MSMEs में. सो हम ये कर रहे हैं, हम दोनों प्रोसेस ला रहे हैं. हम डिजिटल ऑनबोर्डिंग भी ला रहे हैं कि आप हमें डिजिटली और ऑनलाइन और उसकी KYC किस तरीके से करेंगे, वो सारे हम अपडेट करेंगे. दूसरा ये कि हम 24/7 सपोर्ट भी देंगे ऑनबोर्डिंग के ऊपर, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं उनको यकीनन ज़्यादा हेड होल्डिंग चाहिए. बिल्कुल. और उनको किसी भी टाइम पे चाहिए होती है. बिजनेस में कभी आपको 11th आवर के ऊपर चैलेंज आ गया, सो वी विल बी देयर टू टेक केयर ऑफ, टू मैनेज ऑल देम थिंग्स, ताकि आप, जैसे मैंने कहा पहले, कि आप ये बिजनेस अपने
बिजनेस की ग्रोथ पे काम करे। ये वाले जो टेक्निकल इश्यूज हैं जैसे इंटीग्रेशन वो का हमको चैलेंज देख है, लेंगे। प्लग इन का चैलेंज है, वी think that we are the subject matter experts for it and we will help you with that. आप अपने बिजनेस के एक्सपर्ट हैं, उसकी ग्रोथ, उसकी मार्केटिंग, उन चीज़ों के ऊपर काम करें। Okay. अच्छा, before I ask you the last question, why do you see कि हमने देखा कि the first fintech app was from the telco side, the other one was also from the telco side, and we have seen some other parties coming into this fintech world. Why do you think that the banks of Pakistan, the commercial banks of Pakistan, वो इतना अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाए? वी हैव सम केसेस लाइक एचबीएल कनेक्ट है, यूबीएल ओमनी है, बट अगेन उनकी वो हाइप और इतनी सक्सेस रेट इतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए था। इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द बैंकिंग एक्सपीरियंसेस हैं, दे हैव गॉट कनेक्शंस इन द स्टेट बैंक, उनका क्यों इतना इस तरफ रुझान नहीं हुआ? अच्छा, फिनटेक में टेलकोस क्यों है? पहले एक तो ये था कि टेलकोस वर कमिंग फ्रॉम मल्टीनेशनल बैकग्राउंड, तो उनके पास यूज केसेस कुछ थे। पीटीए इज कंपैरेटिवली अ रिलैक्स्ड रेगुलेटर एज वेल। स्टेट हमारी बैंकिंग की, क्योंकि इसमें पेमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो रेगुलेशंस काफ़ी आपको फॉलो करनी पड़ती है, कंप्लायंस करनी पड़ती है, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और बैंक्स दूसरी चीज़ों के ऊपर उस वक्त ध्यान दे रहे थे, फाइनेंसिंग हो गई उनकी, बैंक्स आर ऑक्यूपाइड इन लॉट ऑफ थिंग्स। तो स्टार्टिंग अ फिनटेक, बिकॉज उस पर आपको सिर्फ टेक पे उस पर काम करना होता है, विच इज़ वाई बैंक्स हैव ओपनड अप टूवर्ड्स फिनटेक, कोलैबोरेशंस एंड ऑल। बैंक्स कह रहे हैं आप हमें सेटलमेंट के लिए यूज़ करें, आप हमें यूज केसेस के लिए यूज़ करें, आपके पास कोई आइडिया आप हमारे पास लेके आए, वी कैन कोलैबोरेट एंड डू सर्टेन थिंग्स। सो बैंक्स, बिकॉज उनके पास ब्रिक एंड मॉर्टर है, उनके पास एक प्रेजेंस है, एक ब्रांड है, तो हम समझते हैं कि उनके साथ कोलैबोरेट करना इज अ विन फॉर बोथ। कुछ यूज केसेस, क्योंकि देखें आप जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतने बड़े यूज केसेस। अगर फिनटेक या कोई फिनटेक नहीं कह रहा मैं, कोई कह रहा हूँ कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी प्रायोरिटी कुछ अरसे के बाद आ सकती है प्रायोरिटी लिस्ट में, क्योंकि बिजनेस है, सो आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। अगर वो फिनटेक आके रिजॉल्व करके एपीआई कनेक्शन के थ्रू जल्दी दे दे, सो वो उनके लिए भी वैल्यू एडिशन है, वो फिनटेक के लिए भी प्ले बनता है। सो इट्स अ गुड प्ले, इट्स अ गुड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट आई सी। और डिजिटल में यही एडवांटेज है, आपको पता है, यू कैन कोलैबोरेट विद सो मेनी पीपल। अच्छा, वेयर डू यू सी द वेरी लास्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू सी द ग्रोथ ऑफ फिनटेक इन पाकिस्तान? हम ये स्विच का जो है वो क्यूआर कोड कब चप्पे चप्पे पे देख रहे हैं, इन ऑर्डर टू गेट दैट गोल जो फिनटेक मार्केट के लिए शायद पाकिस्तानी के स्टार्टअप्स के हैं। तो वेयर डू यू सी पाकिस्तानी फिनटेक इन नेक्स्ट 5 years? I see, of course, I really want to see a more digitally enabled Pakistan, both in terms of payment, communication and whatever it is, because they are interlinked, I believe. तो अब जो यूज केसेस बिल्ड हो रहे हैं, स्पेशली P2P के साथ, P2M के साथ, मैं उनमें अब बहुत सारी जगहों पे डिजिटल एक्सेप्टेंस और नजर आएगी ऑफिशियली। अनऑफिशियली से मेरी मुराद है अभी जो हो रही है वो ये है कि अगर किसी को मुझे अमाउंट ट्रांसफर करना होता है ना, इवन पार्किंग की जगह पे, मेरे साथ थोड़ा इशू है कि मेरे पास कैश नहीं होता है। सो मैं उस वक्त अपॉर्चुनिटी अवेल करता हूँ कि अगर कोई चाहे पार्किंग की जगह, कोई कहीं पे भी जगह, आप कहीं जा रहे हैं किसी को ट्रांसफर करने, सो मैं पूछता हूँ। एंड मोर ऑफ्टन देन नॉट यू फाइंड आउट कि किसी का कोई ना कोई डिजिटल अकाउंट है, आप उसमें ट्रांसफर करते हैं और काम हो जाता है। मगर ये एक साइड पे हो रहा है, इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर हो रहा है। बट विद दिस P2P P2M रेल्स, क्योंकि उसमें इंस्टेंट ट्रांजैक्शन हो रही होगी, इंस्टेंट सेटलमेंट हो रही होगी, चार्जेस वी आर एंटिसिपेटिंग के कुछ कम होंगे, इनोवेटिव यूज केसेस आ रहे होंगे। सो ऐसे बिजनेसेस जो शायद MDR के डर से थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं, वो भी इसको एब्जॉर्ब करेंगे, इसको इनेबल करना चाहेंगे, क्योंकि इंस्टेंट पेमेंट हो रही होगी, अमाउंट कम होगा, अच्छे यूज केसेस उसके ऊपर बिल्ड होंगे, मजीद इनोवेशन बिल्ड होगी। तो ये मतलब इट्स जस्ट द बिगिनिंग, अभी तो हम बहुत ही छोटा सा पाए। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ लॉट ऑफ योर टाइम। आपने बहुत कुछ समझाया, एंड वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ अबाउट स्विच ऑल्सो, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइज। और वी होप टू सी दैट कमिंग एज अ वेरी गुड support for the merchants in next few years. Thank you so much viewers for subscribing us, liking us, और podcast के वाले से कोई भी चीज़ पूछनी हो तो do comment नीचे, and we have got Facebook and Instagram for short questions answer. Thank you so much. Allah Hafiz.